Good morning, children. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, beta. So all are ready for the class? Yes, Yes? ma'am. Yes, that's good. So, so shall we begin the class or let's wait for more minute? बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक. Okay. बच्चे सारे ready हो? You ready? Good, beta. So we'll start the class, है ना? ठीक है बच्चे? So shall I start the class, beta? Yes? Yes, ma'am. ठीक है. So we had read till second part that how we have to put out the fire, है ना? Today we'll see the third point. First point, do you remember? Yes, First point, ma'am. good. First point, what it was? Ma'am, What was? fuel. Yes, fuel. We have to take out the fuel, and you have to keep away from that heaty place, or you can say the fireplace, है ना? And second thing, what was that? Ma'am, You have to remove the. You have to prevent the oxygen to reach the fuel or fire, है ना? Yes, याद है second thing? Yes, ma'am. yes, ma'am. You have to prevent the oxygen, है ना? And now third thing you have to uh, third thing we have not read na? Yes, that is heat it will be. So these three things you have to keep away when fire is very much wild. So I will share you the PDF now and we'll begin the class and we'll read that third point how we have to put out the fire, है ना? लेट्स सी बहुत कम बच्चे अभी तक ज्वाइन किए हैं बच्चे. क्या हो गया बच्चों को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं? So I will share you the PDF ना? Yes children? ठीक है. Sorry. Can you see here? Yes? Yes, ma'am. Yes. So, Sushma is here. Sushma, are you here? Yes, ma'am. Okay, beta, you read this page. This one, you know, page number 116. This one, third way, the third way of putting out the fire. आपको दिखाई दिया बेटा? Good morning, ma'am. Yes, Good ma'am. morning बेटा. हाँ, चलो पढ़ो तो बेटा. Actually, The I'm copying. third way. Yes.
The third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, brightening down its temperature below the flash point. Its temperature below the Bringing, flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the water, burning fuel. burning fuel, and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen, and the fire is Extinguished. extinguished. हाँ वेट हाँ तो थर्ड वे जो कि थर्ड वे हम अभी पढ़ने वाले हैं जो द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट एज आई टोल्ड यू ना कि जब आप आग को बुझाना है तो आपको क्या करना है उस हीट को मतलब वहां तक पहुंचने नहीं देना है रोकना है ना टू रिमूव द हीट if the temperature can be brought down below the flash point the fuel stops burning as you know जैसे कि वहां पे आप क्या करोगे फ्यूल को हटा दोगे हीट को वहां पे रीच आउट होने नहीं दोगे तो क्या होता है वो अपने आप वो जो आग धधकती हुई आग क्या होता है अपने आप वहां से मतलब बुझ जाती है ना the fuel stops burning means it doesn't burn it stops बुझ जाती है you blow on a burning matchsticks or a candle to put it out in doing so you remove the hot air around the flame bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out यदि आप वहां पे मैचस्टिक है तो आप वहां पे मैचस्टिक को क्या करोगे बर्न जब ब्लो करते हो ब्लो मतलब यू नो उसको फूकते हो है ना ब्लो कर देते हो तो वो अपने आप कैंडल या तो मैचस्टिक क्या हो जाता है बुझ जाते हैं है ना समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर कभी देखे होंगे बहुत ज्यादा धधकती हुई आग में क्या करते हैं लोग वाटर डालते हैं है ना हैव यू सीन दैट कभी देखे हो यस Yes, ma'am. आग जलते हुए आग में क्या करते हैं पानी डालते हैं है ना वाटर स्प्रे करते हैं तो इट absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature तो ये जो है बेटा किसी का माइक ऑन है बेटे प्लीज म्यूट कर लो प्लीज म्यूट कर लो हाँ तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है पानी वो हीट जो है ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनका जो टेम्परेचर होता है वो लोअर हो जाता है लो हो जाता है टेम्परेचर जब वो लो हो जाता है तो वो अपने आप धीरे धीरे टेम्परेचर लो की वजह से वो आग अपने आप बुझ जाती है द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश तो यहाँ पे देखोगे कि जब कहीं आग जलती है ना उस टाइम में आप क्या करोगे आपका ब्लैंकेट को गीला करके वेट करके उस फायर में कवर अप कर दोगे तो वहां पे ऑक्सीजन रीच आउट नहीं हो पाता है ऑक्सीजन जब नहीं रीच आउट होता है तो वो आग आगे और कभी वो धधकती हुई आग नहीं बन सकती है वो धीरे धीरे लो टेम्परेचर होने की वजह से वो धीरे धीरे बुझ जाती है एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश मतलब फायर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है एक्सटिंग्विश मतलब यू नो पुट आउट हो जाता है खत्म हो जाता है जलना बंद हो जाता है ठीक है नेक्स्ट Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires
caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. Okay, wait. Some fires cannot be put out with water. जैसे कि आप देखे होंगे बड़ी बड़ी मतलब बहुत बिग बिग बिल्डिंग में जब आग लग जाती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट आउट द फायर विथ वाटर, है ना। ये पॉसिबल नहीं होता है, जो कि हम वो फायर को पानी के हेल्प से हम क्या है वाटर से हम बुझाएंगे, ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं होता। इट कैनॉट बी, वी कैनॉट पुट आउट दैट फायर। बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, कंपनी, फैक्ट्रीज ये वगैरह में आग लग जाती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, फायरमैन को बुलाते हैं, है ना, जो कि आग बुझा सकते हैं। तो उन लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी उनका व्हीकल होता है, वो सारे से इन लोग सब कुछ लेके आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। If water is spread onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. देखो, कभी भी अब क्या है ना, आग में जब क्या है, अब सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, सब्जियां बनाते हैं, तो क्या होता है, ऑयल डालते हैं ना। ऑयल डालने के बाद क्या होता है, जब आप कुछ वाटर भी थोड़ा सा वहां पे आप थोड़ा सा वाटर भी वहां पे छिड़क दोगे या तो वहां स्प्रे कर दोगे, तो क्या होता है, वो आग ऊपर की ओर उठता है ना। तो फ्लोट हो जाता है वाटर से, क्या है, टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। और ये कंटिन्यू टू बर्न मतलब वो जल जलना पूरा चालू कर देता है ना, एंड इट डजंट स्टॉप। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लोट क्विकली। ये बहुत डेंजरस है, जब भी ऑयल गर्म है तो कभी भी आप वाटर नहीं डालना, अदरवाइज यू विल गेट बर्न। क्योंकि वो जो वाटर है वो तुरंत फ्लोट होता है, फ्लोट आउट होता है, मतलब ऊपर की ओर आ जाता है क्विकली, सो यू मे गेट बर्न। So you don't when you are cooking some vegetables or something, be careful, okay? So carrying the burning very dangerous because water can flow quickly. Carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. So यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक, जब भी इलेक्ट्रिक क्या है, आग लग जाती है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना है कि क्या है, इलेक्ट्रिक वायर में पानी नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, यू नो, आप साइंस में पढ़े होंगे, है ना, वाटर इज ए गुड कंडक्टर। यस, पढ़े हो। Yes, ma'am. हाँ, yes, it is a good conductor, so that electricity can pass through that and it will reach to you. आप जब वो पानी डालते होंगे तो उसी पानी में इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, और लग सकता है नहीं, वो लगेगा, एंड इट विल रीच टू यू एंड यू विल गेट शॉक, है ना। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। और आपको पता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी बॉडी में पास आउट होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यू विल डाई, है ना। सो ये जो वाटर से कभी भी आप गीले पाँव या गीले हाथ से कभी भी स्विच वगैरह को नहीं छूना है ना। डोंट पुट ऑन द स्विच और पुट ऑफ, यू हैव टू वेरी केयरफुल, डोंट बी केयरलेस, ओके। The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. So सबसे ज़्यादा अच्छा चीज कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब भी वो आग लग जाती है ना कहीं पे, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक वायर में कभी भी आग लग जाती है तो यू हैव टू स्प्रे दैट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप फायरमैन जो आते हैं उन लोग उनके गाड़ी और व्हीकल में क्या लेके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर, है ना। इफ
जो फायर ज्यादा नहीं है तो वो वाटर के साथ बुझा सकते हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़ा है तो दे कैनॉट पुट फायर, दे कैनॉट स्प्रे वाटर, दे कैन स्प्रे ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ में आया? तो अब कभी भी आपके घर पे भी इलेक्ट्रिक में वायर में आग लग जाती है तो कभी भी आप पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करना है। अंडरस्टूड नाउ? यस, नेक्स्ट करो बेटा। We spend millions of rupees each year in fighting fire, and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of मैम control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. ओके Long वेट, ago, रुको बेटा। We spend millions of rupees each year in fighting fire. जब हम फायर, जैसे कि आप दिवाली के टाइम पे देखे होंगे, दिस टाइम दिवाली आई डोंट नो हाउ इट वाज, बट प्रीवियस टाइम बहुत सारे घर घर हो, हाउसेस, बिल्डिंग्स जल जाते हैं, है ना? तो ये शॉप्स वगैरह जल जाते हैं एंड फैक्ट्रीज वगैरह जल जाते हैं। उस टाइम में बहुत सारी मनी स्पेंड होता है ना, मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड होता है बिकॉज ऑफ दैट फायर, वाइल्ड फायर कैचअप हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है तो बहुत सारे नुकसान होता है ना? एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग मतलब टू स्टॉप, है ना? प्रिवेंट मतलब उसको रोकने के लिए, फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम बहुत कोशिश करते हैं, जब बहुत ज्यादा आग लग जाती है तो लोग बहुत कोशिश करते हैं ना, दे ट्राई देयर बेस्ट, लेवल बेस्ट टू पुट आउट दैट फायर। ऑन द होल good year every अर्ली टाइम, अर्ली एंशिएंट टाइम पे क्या है ना, कि जो अर्ली मैन थे उन लोग, दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ फायर बट दे वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ फायर। एक भी आवाज नहीं आ रही बेटे? yes, ma'am. यस, मैम आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो यस देखो मैम। बेटा आपके तरफ प्रॉब्लम होगा, है ना? आ रही है मेरी आवाज दूसरे बच्चों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये देखो कि ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. So everyday life में we are using fire, isn't it? है ना? Am I right? हम बिना आग से तो खाना नहीं बना रहे हैं, बिना हीट से हम पानी गर्म नहीं कर रहे हैं ना, हॉट वाटर नहीं बना पा रहे हैं ना। So we are controlling the fire. If we don't control, then it will cause damage, है ना? बहुत सारे नुकसान कर देगा यदि हम उनको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो। जैसे आप जानते हो अर्ली मैन, जो कि उनको फायर से डर लगता था, है ना? ओनली दे हैड सीन द कॉज ऑफ डैमेज ऑफ फायर, जो फायर जो कॉज डैमेज जो करता था उनको देखे थे। इसीलिए अर्ली मैन जो थे, दे वर फ्राइटेंड ऑफ फायर, दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज इट, दे डिड नॉट नो हाउ टू कंट्रोल। तो हम एवरीडे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, फायर का यूज कर रहे हैं। जैसे हम कुकिंग करते हैं, हॉट वाटर बनाते हैं, है ना? हॉट वाटर में करने के लिए, घर में ठंड के टाइम पे वार्म अप करने के लिए, एंड लकड़ियां जलाने के लिए, ऑल दिस, फॉर दिस थिंग्स वी यूज फायर। नेक्स्ट। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chain, they still do if required, and passed bucket of water from a well or a pond to the blaze. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk.
Every new building, especially a public place, must ensure observance of Observance. fire Hmm. fire Observance. pre- observance of fire prevention norms. Bands Prevent. of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out Breeds. fire. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that मैम आगे का नहीं दिख रहा. अभी आया. No ma'am. Just wait. अभी दिख रहा है. Yes ma'am. दिख रहा है. हाँ. Okay. Yes ma'am. They can help people suffering from burn or from the effect of smoke. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. Okay. Wait. Huh? You see, long ago there were no firemen. जब ancient time में you will see there were no firemen. Who is fireman here? जो फायर को पुट आउट करते हैं, है ना, जो आग बुझाते हैं, जो म्युनिसिपालिटी में रहते हैं. दे वर्क फॉर द म्युनिसिपालिटी, है ना, वर्कर्स. सो दे पुट आउट द फायर. Okay, long ago there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. जब फायर ब्रोक मतलब जब फायर पकड़ता है किसी घर पे, तो पहले क्या करते थे लोग, सब एक साथ फायर फाइट करते थे, है. ठीक है, फायर फाइटर बन जाते थे. पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स. इन लोग क्या है, इन लोग लाइन में खड़े हो जाते थे. आप देख रहे हो ना पिक्चर में. Yes, they were standing in queue. They were standing in line and passing out the water. Can you see? यहाँ बकेट एंड पॉट में इन लोग क्या कर रहे हैं, पानी पास आउट कर रहे हैं ना. यस, कैन यू सी. यस. तो ये है पहले जो एंशियंट टाइम में लोग, जब भी फायर, एंशियंट टाइम मतलब बहुत एंशियंट, पूरे मतलब पूर्वज जो है उनको फायर के बुझाने की कोई तरीका नहीं था, तो ये क्या करते थे, पानी से ही बुझाने की कोशिश करते थे. तो एक जान से तो काम नहीं चलता है ना, तो दे यूज्ड टू मेक ए लाइन, चेन बनाते थे. तो एक दूसरे को पास करते रहते थे पानी, बकेट ऑफ वाटर. दे स्टिल डू if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. मतलब जहाँ पे पॉन्ड है या तो वेल है वहां से लेकर उस घर तक, या तो कहीं जहाँ पे आग लगी है वहां तक इन लोग चेन बनाते थे. एंड दे यूज्ड टू पास द बकेट ऑफ वाटर. एक दूसरे से पास आउट करते करते वहां तक पहुंचाते थे. नाउ देयर आर लॉस अबाउट बिल्डिंग्स construction which ensured that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो अभी देखो, जब now there are laws मतलब they now people they know how to put out the fire. So now they have so many things in buildings also. You will see जो बड़े बड़े बिल्डिंग में you will see some फायर का कुछ रखा हुआ होता है. हैव यू सीन, कहीं देखे हो फायर? Yes, ma'am. यस, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रखा हुआ होता है. ठीक है, तो ये जो फायर जो सीढ़ियाँ वगैरह में पास पास में इधर उधर रखा हुआ होता है, आप देखे होंगे रेड रेड सा डब्बा जैसा होता है ना. हैव यू सीन दैट? Yes, ma'am.
हाँ, तो वहां पे ये लोग प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, कहीं आग लग जाए तो वो इमरजेंसी फायर के लिए, ये पुट आउट के लिए रखते हैं, है ना। सो दैट इज फॉर इमरजेंसी ओनली। in case something happens, then they will use that. So now in buildings and construction work में you will see that space is left between buildings to reduce the risk. To reduce the risk, risk नहीं लेते हैं कोई। यदि आग भी लग जाए तो they will be easily, they that fire will be easily controlled, है ना। जो फायरमैन को बुलाते तक वो जो फायर कैच हुआ होगा उसको मतलब कंट्रोल में रख पाएंगे, है ना। so now it is not that risky, है ना, because of that uh, carbon dioxide or some gases they keep, है ना। so it is not that risky to have that wildfire. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire preventing norms. देखो फायर प्रिवेंटिंग नॉर्म्स लगाते हैं, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको रखते हैं, जिससे वे आग को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। Bands of fire fighting workers with special equipment known as fire bridges are there to put out fires. So these things, workers and known as fire bridges, equipment. Equipment means the thing with which you can put out the fire, है ना। so वो चीज जो है उसको रखते हैं, जो इक्विपमेंट होता है फायर को पुट आउट करने के लिए। एंड देयर टू पुट आउट फायर्स, फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। एज यू नो दैट ये जो पुलिस फोर्स में जो जाते हैं उनको जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना बेटा, उसी तरह ये जो फायर में जो फायर फाइटर जो होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है ना। दे गेट ट्रेन्ड, उनको बिना ट्रेनिंग से उन लोग आग बुझा नहीं सकते। जैसे हम हैं, हमको ट्रेनिंग नहीं मिला है, यू डिड नॉट गेट एनी ट्रेनिंग, है ना। सो यू विल नॉट बी एबल टू पुट आउट द फायर, एंड दे आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। दोज फायर फाइटर्स आर, they are highly trained people. Simple people, they cannot. Public people, they cannot until unless they have the training. जैसे कि आर्मी फोर्स, पुलिस फोर्स, पुलिस में जैसे कि आर्मी फोर्स वालों का बहुत ज़्यादा ही क्या है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है ना, हाईली ट्रेन्ड पीपल होते हैं, तभी तो हमारे देश को उन लोग क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, है ना। एंड सिंपल पीपल दे कैनॉट डू दैट ऑल्सो। सो यहाँ पे भी यू विल सी दैट दोज हु आर फायर फाइटर्स, दे आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। they possess many skills. Skills matlab they have lot of knowledge, lots of knowledge they have, how they have to put out the fire, they have that knowledge. They cut off electricity supply. First of all, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर पे लग गया है तो व्हाट दे डू, दे कट आउट, दे कट ऑफ, उनको कट कर देते हैं इलेक्ट्रिक वायर को, जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट देते हैं ना, है ना, कट ऑफ कर देते हैं। नॉकडाउन डेंजरस वॉल्स, और ये नॉकडाउन मतलब वो गिरा देते हैं नीचे की ओर, जितने भी वॉल्स होता है जिसमें आग लगी है सबको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। एंड उन पे पानी डालते हैं, जो वॉल्स वगैरह होता है वह पानी डालते हैं, नॉट इन द इलेक्ट्रिक वायर, है ना, वो वॉल्स वगैरह में पानी डालते हैं। एंड जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्प्रे करते हैं, एंड दे ब्रिंग दैट फायर टू द कंट्रोल। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड so that they can help people suffering from burns on from the efforts of smoke. अब देखो, they are very much trained people
है ना। इतना ट्रेन्ड पीपल है जो कि उन लोग जो बर्निंग हो जाते हैं, कोई लोग बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनको भी उन लोग बचा सकते हैं। जैसे घर के अंदर कभी आग लग जाती है एंड दैट पर्सन इज इनसाइड द हाउस, तो वो तो निकल नहीं पाती है ना, कोई भी पर्सन निकल नहीं पाते हैं। तो ये फायरमैन क्या करते हैं, उनको मतलब रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाने की, मतलब उनके पास आइडिया है। दे नो द आइडिया हाउ टू escape, हाउ टू prevent them, हाउ टू protect them from that wildfire। एंड बहुत सारा स्मोक होता है, स्मोक बहुत सा धुंधला सा होता है, फिर भी उनको पता है कैसे करके वहां तक रीच आउट होना है। सो दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर हाईली ट्रेन्ड, है ना। दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट, और बिना ट्रेन से उनको कभी फायर फाइटर नहीं बनाते हैं। सो until unless they have that knowledge, they can't become firefighter। The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of fire। देखो, द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो खोज किए थे, है ना, अर्ली पीपल दे हैड सर्च्ड आउट, सर्च किए थे क्या, फायर को, कैसे, बाय रबिंग द स्टोन, है ना, टू स्टोन को रब करने से वहां से फायर रिलीज होता था, है ना, प्रोड्यूस होता था। तो ये अर्ली पीपल दे नो, बट दे वर वेरी मच फ्राइटेंड एंड its uses helped early early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of fire, sorry, life, not fire, mode of life। now धीरे धीरे वो अर्ली मैन धीरे धीरे क्या हुए, क्या कि इन लोग को पता चल गया कि हाउ दे विल यूज द फायर। सो हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर, नेचर से उन लोग डील करने लग गए। तो दे केम टू नो, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, ओके। सो स्लोली दे अडप्ट, अडप्ट मीन्स उन लोग अपनाए, है ना, एंड सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे ये फायर यूज किए एंड दे न्यू हाउ टू कंट्रोल एंड दे लर्न हाउ टू कंट्रोल द फायर। एंड धीरे धीरे इन लोग क्या किए, इनके यूज के बारे में सीखने लग गए, सीख गए, एंड दे स्टार्टेड cooking the food and heating the water and burning the wood and warming themselves, है ना, ये सारे चीज उनको धीरे धीरे समझ में आ गया। फायर इज स्टिल worshipped in many parts of the world। Fire is still worshipped, as you know, in the temple, है ना, टेम्पल में या कहीं भी जाओगे तो दैट इज, जो आग जलाते हैं ना, दैट इज द साइन ऑफ, यू कैन वर्शिप, यू कैन से दैट इज द साइन ऑफ वर्शिपिंग। गॉड को वर्शिप करने के लिए कभी हम क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं, है ना, कैंडल जलाते हैं, या तो हम आग जलाते हैं। जैसे कि मैरिज टाइम पे हो या कोई सेरेमनी होता है, दे देन what they do, they light the candle, they light the candle, they burn the fire, है ना। So that is the sign of worshipping। So in many places you will see in the world, especially in India, you will see that in worship place, आप देखे होंगे, है ना, वर्शिप प्लेस में आग जलता हुआ रहता है ना। यस, वहाँ पे घी वगैरह डालते हैं, है ना। यस, ये सोलो देखे Yes, हो, ma'am. हाँ। जिससे आग ना बुझ जाए, है ना, तो वो घी वगैरह डालते रहते हैं एंड दे वर्शिप गॉड, जैसे कि आरती उतारते हैं। देन ऑल्सो वी नीड फायर, है ना, वहाँ पे लाइट करते हैं, कैंडल जलाओ या तो धूप जलाओ, वहाँ पे आपको लाइट की जरूरत ही होता है। सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज, फायर इज स्टिल वर्शिप्ड। फायर को कोई अग्नि देवता मानते हैं, है ना। हैव यू हर्ड, कभी सुने हो आप अग्नि देवता? यस और नो, सुने होंगे बच्चे ना।
तो ये अग्नि देवता जो होता है वो फायर गॉड है. फायर इज नीडेड, सॉरी, fire is indeed a friend, but as well as we know, it can be an enemy once it gets out of control. देखो, fire is indeed a friend. बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो बच्चे. तो ये जो फायर है दैट इज इंडीड अ फ्रेंड. ऑफ कोर्स इट इज अ फ्रेंड बिकॉज इट इज सर्विंग अस. जैसे कि इन प्रीवियस पेज में आप पढ़े होंगे कि फायर इज अ गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर, है ना. यस, वी हैव कम अक्रॉस ना कि फायर हमारा एक गुड सर्वेंट है और बैड मास्टर है ना. तो यहाँ पे यू विल सी द फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बहुत अच्छा एक दोस्त है. बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी once it gets out of control. ये अच्छा है, फायर इज गुड, बट जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है देन इट बिकम्स डेंजरस एनिमी, बहुत खतरनाक बन जाता है. जैसे हमारे एनिमी कोई है तो जैसे वो रिवेंज लेने के लिए चाहते हैं, उसी तरह ये फायर भी बहुत डेंजरस है. इट विल बर्न एंड फिनिश द थिंग्स, है ना. जहाँ पे फायर लग गया मतलब आप समझ लो वो चीज नष्ट हो चुका, ऑलरेडी खत्म हो गया. यू विल नॉट गेट बैक एज इट वॉज बिफोर, है ना. आपको वो चीज वैसा कभी, जैसा था वैसा कभी नहीं मिलेगा. एंड इट विल बी फिनिश, है ना. सारा चीज खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ फायर. यदि वो वाइल्ड हो जाता है और आपको पता नहीं है कैसे कंट्रोल करना है तो सारे चीज को ये नष्ट कर देती है. सो whenever you are cooking something in the house or you are making something, then please after putting off that gas cylinder just you check the regulator. ओके, हमेशा बच्चे आप लोग रेगुलेटर चेक करना, कहीं भी जाना है तो आप रेगुलेटर चेक करके बाहर निकलोगे. ओके, क्लियर, अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपको बहुत अच्छे एक लेसन मिला है. फायर से आप लोग को बहुत सारे यूजफुल होता है एज वेल एज अब बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है. सो यू नो हाउ टू यूज द फायर नाउ, isn't it? You have read how to control, how to put off. अब सारी चीज यहाँ पे आपको सिखाया गया है ना. Now you have learned, so don't be एक अच्छी लेसन है आप लोग के लिए जो कि आपको हमेशा सतर्क रहना है. सो डोंट बी केयरलेस. जब आप कुछ भी करते हो फायर के साथ तो कभी भी फायर से प्लेफुल नहीं करना है. समझ में आया बच्चे? बच्चों को Yes, समझ में आया? ma'am. Yes, ma'am. आपको समझ में आ गया कैसे आग को जलाना है और कैसे आग को बुझाना है. हाउ टू प्रिवेंट एंड हाउ टू मेक इट यूज, है ना. प्रिवेंट करने भी पता हो गया, हाउ टू पुट आउट करते हैं पता हो गया, और कैसे आग जलाना है वो भी पता हो गया. हाउ टू मेक इट इनटू, हाउ टू कीप इन कंट्रोल, कैसे कंट्रोल में भी करना है वो भी आपको समझ में आ गया. एम आई राइट? इज इट क्लियर नाउ? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो बच्चे. डाउट है?